So today we are going to discuss this clamper circuit. Now, what is a clamper? Till now we have studied a clipper, in which we've seen that a portion of the wave we can cut it off. But here in the clamper circuit, if suppose I want to shift the DC level of my input, for example, let me suppose I'm having this input waveform, right? Let's say it's 5 volt, minus 5 volt. Now, if this is my input volt, I want my output should look like, say, this, move to 10 volts, and here it is 0 volts, suppose. I'm not drawing properly. So what I've done is that whatever the input I have given, I just shift my input upside. Or I might require कि मेरे को output जो चाहिए ना वो आपको ऐसे ही चाहिए. I want output like, let's say, है ना? So let's say ये 0 है and let's say this is minus 10. So I have plotted two outputs. One is this, one is this. Let me call it VO1, VO2, suppose. So for this particular input, if I want this particular output, it means I am not changing the shape of the signal. What I am doing is that I am just changing the reference level or the DC level of my input. For example, in this case, my DC level is what? 0 volts. My entire input sine wave is residing on a 0 volts, right? It's a reference voltage. Now, if I want to shift this 0 to, let's say, 5 volts, as I've done in the first figure, VO1. So here my reference is what? 5 volts and 5 volts up 5 volts, below 5 volts. So total peak to peak is 10 volts. So here the point of focus is that whatever the input I have given, just focus on the peak to peak voltage. I will call peak to peak voltage. What is the peak to peak voltage in this case? Can you give me 5? If it is going from 5 to minus 5, what is the peak to peak voltage? बोलो शाबाश, कितनी होगी पीक टू पीक वोल्टेज इनपुट की? पीक टू पीक का मतलब क्या है? ऊपर पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक कितना वोल्टेज है? कंप्यूट करो. 10 वोल्ट्स. कैसे निकाला? आपका 5 वोल्ट्स पॉजिटिव पीक थी, नेगेटिव वोल्ट 5 माइनस 5 है, तो 5 माइनस और माइनस 5. This gives you what? 10 volts. So 10 volts is my peak to peak voltage for the input signal. Now, if I check for the output signal, output का कितना peak to peak है देखो जरा. Starting from this peak to this peak. 10. So it means my input voltage swing peak to peak is 10 volts. Output voltage swing is also 10 volts. So it means this is fine. That is, I am not change the DC level of the signal. Means आपका क्या है कि जो आपका output voltage swing है, again repeat, output voltage swing and the input voltage swing. Voltage swing का मतलब क्या है कि ऊपर से पीक से नीचे वाली पीक. स्विंग का होता है ना उठाना. तो आपकी पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक. सो इन योर क्लैम्पर्स आपको एक चीज माइंड में क्या रखनी है, दैट माय आउटपुट वोल्टेज स्विंग must be equal to input voltage. ये आपने माइंड में बिठा लेना अपना पॉइंट. क्या कि अगर मैं क्लैम्पर सर्किट कोई आउटपुट ड्रॉ कर रहा हूं क्लैम्पर की, तो आउटपुट का जो वोल्टेज स्विंग है वो इनपुट वोल्टेज के स्विंग के बराबर होना ही चाहिए. अगर नहीं हो रहा तो आपने कुछ गलत किया है. और वोल्टेज स्विंग का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि आपका ये इनपुट है या आउटपुट है, तो ये स्विंग का मतलब फ्रॉम पॉजिटिव पीक टू नेगेटिव पीक. तो ये पीक टू पीक कहने का मतलब. तो आपका जो इनपुट पीक टू पीक है और जो आउटपुट पीक टू पीक है, अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, वो इसे आउटपुट वोल्टेज स्विंग मैचेस विद द इनपुट वोल्टेज. राइट. अब जो आपकी फर्स्ट वेव फॉर्म है ये वाली,
इसके अंदर हमने क्या किया, इनपुट के वोल्टेज को ऊपर ले गए पॉजिटिव साइड, है ना। तो इस टाइप के सर्किट को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ पॉजिटिव क्लैंपर। और इस फिगर में जो VO2 लिखा हुआ मैंने, here I have shifted the DC level to let's say -5 here, तो मैंने नीचे लेके आया वेवफॉर्म को, है ना, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव क्लैंपर। Now let's read the definition. An electronic circuit which is used to shift the waveform to a different DC level without changing the shape of the input signal is known as clamper circuit. तो क्लैंपर का काम क्या है, इसमें कहते हैं क्लैंप कर दो। क्लैंप का मतलब क्या होता है, जिस लाइक कुछ को फिक्स कर दो कहीं पर, तो आपके सिग्नल से आपने उसको उठा के ऊपर क्लैंप कर दिया, चेंज नहीं किया इनपुट को, सिर्फ क्लैंप किया, डीसी लेवल शिफ्ट किया ऊपर नीचे बस। अगर ऊपर शिफ्ट कर दिया उसको बोलेंगे पॉजिटिव क्लैंपर, नीचे शिफ्ट किया उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव क्लैंपर। इतनी बात क्लियर है कि क्लैंपर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव क्लैंपर का मतलब क्या है, नेगेटिव क्लैंपर का मतलब क्या है। अभी सिर्फ मतलब पता हो, वर्किंग कैसे बनाना चाहिए वो हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इतना क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट तो बताओ मुझे। क्लियर है सर। राइट, तो अब हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जैसे ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, देखो एक क्लैंपर सर्किट है, राइट। इसको इनपुट तो ये जा रही है पीक टू पीक, लेट्स से प्लस वी से माइनस वी, तो प्लस वी से माइनस वी कितनी हो जाएगी पीक टू पीक, 2 टाइम्स वी, है ना। तो आपकी जो इनपुट है इसको गई क्लैंपर सर्किट, इट माइट गिव यू दिस आउटपुट वेयर माय reference level is changed to V dash, but peak to peak is 2V, right? Similarly, here in this figure, it is clamping to the lower level V double dash, where it is peak to peak again 2V. So either it can do positive or negative clamping depending upon the circuit. Now, the question is that which component is to be used for clamping this voltage? आपकी इनपुट वोल्टेज आ रही है ना, आप इनपुट वोल्टेज को कुछ चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ उसको क्लैम्प कर रहे हो ऊपर या नीचे। अब वो क्लैम्प करने के लिए क्या चीज यूज करूं मैं, व्हाट एलिमेंट आई शुड यूज, सो उसके लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर देखो आप लोग समझे ना, सो एक कैपेसिटर यूज करते हैं हम फॉर क्लैंपिंग। क्लैंपिंग का मतलब क्या, आइदर टू टेक योर इनपुट अपसाइड और टू ब्रिंग इट डाउनसाइड, जस्ट टू शिफ्ट द डीसी लेवल, बट मेक श्योर always the peak to peak or the output voltage swing must be equal to input voltage swing, right? चलो इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। so this is a circuit for your clamper, देख रहे हैं आपको, आप कुछ आपको क्लिपर्स की तरह लग रहा होगा कि क्लिपर में भी हमने कुछ डायोड यूज किया था, रेजिस्टर यूज कीजिए ना, बट पहला डिफरेंस क्या है, देखो कभी भी आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में ये क्लिपर है ये क्लैंपर है, एमसीक्यू में मान लो आ गया, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, क्लिपर में डायोड लगा होगा डेफिनेटली, रेजिस्टर भी लगा होगा, क्लैंपर में भी डायोड होगा, रजिस्टर होगा, लेकिन along with this it also have a capacitor, और क्लिपर्स में कभी कैपेसिटर नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपके दो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया कि अगर मुझे कैपेसिटर दिख रहा है और डायोड रजिस्टर है तो ये क्लैंपर वाला सर्किट है, अगर डायोड और रजिस्टर खाली है कैपेसिटर नहीं है तो क्लिपर है। तो आपको माइंड में क्लिप से क्लियर होगी क्लिपर और क्लैंपर में फर्क क्या है इन द सर्किट। अब इस सर्किट की वर्किंग स्टडी करते हैं, क्या मतलब है सर्किट का, हाउ इट इज गोइंग टू क्लैंप इट। तो इन दिस सर्किट ऑफ क्लैंपर हमारी पहली कोई बेसिक अजम्पशन है, अजम्पशन कह लो या सॉल्यूशन कह लो, जो भी कह लो आप। अजम्पशन क्या है, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है पता है आप लोगों को, जिसको हम टाउ बोलते हैं, टाउ को लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू आर इनटू सी, है ना। तो ये जो टाइम कांस्टेंट है इसको हम विल केप्ट वेरी हाई। अब इसका मतलब क्या है, पहले कंसेप्ट समझते हैं क्यों हाई रख रहे हैं हम इसको। ये जो आपका कैपेसिटर है, आपको सबको पता है कि कैपेसिटर करता क्या है, एक साइकिल में चार्ज होता है, दूसरी साइकिल पे डिस्चार्ज होता है, दिस यू ऑल नो, है ना। ये एक हाफ में चार्ज होगा एक हाफ में डिस्चार्ज होगा, डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई वोल्टेज, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तो
वो चार्ज बहुत ही इंस्टेंटली करेगा। इंस्टेंटली का मतलब क्या है? विद अ वेरी लेस चार्जिंग टाइम। Again repeat, we're saying for the case of clampers, my capacitor is getting charged instantly, means with a very less charging time. But if we talk about the discharge, we'll say the capacitor is not allowed to get discharged. क्या मतलब है इसका? कि हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं होने देंगे। तो कैसे ना होने दें? हाउ टू स्टॉप इट? उसका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बढ़ा दो। डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होता है? जहां से वो डिस्चार्ज होकर जाएगा, R इंटू सी। तो हमने कहा जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके टाइम कांस्टेंट को इतना बढ़ा दो कि पूरी साइकिल खत्म होने के बाद भी वो डिस्चार्ज हो ही ना। लेट्स टेक एग्जांपल फॉर दैट टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट। कि सपोज yes, is it visible to this screen everybody? Yes, sir. हाँ, अब हमने क्या कहा कि जो मेरी कैपेसिटर है, ये हमने कहा कि लेट्स से इसको बना ही लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, कि हमने यहाँ पर एक इनपुट वोल्टेज दी। अब इस इनपुट वोल्टेज का अज्यूम कर लेते हैं टाइम पीरियड हम लेट्स से 1 मिलीसेकंड है सपोज। तो अगर ये 1 मिलीसेकंड इट मींस ये कितना होगा? 0.5 मिलीसेकंड, राइट? नाउ व्हेन वी गिव पॉजिटिव हाफ तो क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा हमारे पास। सो कैपेसिटर चार्ज, तो हम क्या कह रहे हैं? द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट एक है हमारे पास डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। इन दोनों में फर्क क्या है? और जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि कितना टाइम ले रहा है। अगर वो कह रहा है चार्जिंग टाइम कांस्टेंट तो इसका मतलब कितना टाइम ले रहा है कैपेसिटर चार्ज होने में। अगर मैं कह रहा हूँ डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट तो कितना टाइम ले रहा है मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? फॉर द केस ऑफ क्लैंपर्स द चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज केप्ट वेरी लो। क्यों? ताकि जैसे ही हम वोल्टेज लगाएं कैपेसिटर फटाफट पीक पे चार्ज हो जाए हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मेरे यहाँ पर V वोल्ट्स है तो ये V पे चार्ज हो जाए। नाउ जब नेगेटिव हाफ आया तो नेगेटिव हाफ फ्रॉम 0.5 टू 1 मिलीसेकंड है ना। तो इस नेगेटिव हाफ में कैपेसिटर ने चार्ज नहीं होना, डिस्चार्ज होगा। तो हम कहें डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट मस्ट बी केप्ट वेरी हाई। कि अगर मैं कहूं सपोज चार्जिंग टाइम कांस्टेंट मैं कहता हूं बहुत लो है, मैंने अज्यूम किया लेट्स से 1 माइक्रोसेकंड कि 1 माइक्रोसेकंड में वो चार्ज हो जाता है सपोज करो। और मैंने ये रखा लेट्स से 1 सेकंड। दोनों में कितना फर्क है? ये 10⁻⁻⁶ सेकंड है, ये 1 सेकंड है ना। अब मेरी जो इनपुट सिग्नल है वो कितने पीरियड का आ रहा है? 1 मिलीसेकंड का मैंने अज्यूम दिया। सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि क्या मतलब है इसका। कि आपका जो इनपुट साइकिल है वो 1 मिलीसेकंड का पीरियड है उसका। तो हाफ दैट इज मींस 0.5 ऑफ मिलीसेकंड्स के लिए मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, है ना। अब 0.5 मिलीसेकंड का मतलब क्या है? 5 × 10⁻³ ऑफ सेकंड्स, है ना। तो इसमें मैंने ये कहा कि जो आपका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट मैंने सपोज करो रखा 1 सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या 0.5 मिलीसेकंड में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो पाएगा जब उसको टाइम कांस्टेंट रखा हमने डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट 1 सेकंड? बताइए, हो पाएगा? No, sir. नहीं हो पाएगा। No, इसका sir. मतलब क्या है? अगर वो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा तो क्या होगा? जो उसने चार्जिंग टाइम में वोल्टेज अटेन करी है वो उसको होल्ड करके बैठेगा। अगर मैंने उसको V वोल्ट में चार्ज कर दिया, 5 वोल्ट पे चार्ज कर दिया पॉजिटिव हाई साइकिल में, तो नेगेटिव में उसको डिस्चार्ज तो हो नहीं पा रहा बेचारा। तो क्या करेगा? वो 5 वोल्ट को होल्ड करके रखेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है? अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका तो क्लैंपर्स का 50% टॉपिक खत्म हो गया। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? कि जब मेरा Yes, sir. कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इंस्टेंटली चार्ज हो गया, डिस्चार्जिंग टाइम में मैं उसको चार्ज होने ही नहीं दूंगा।
क्योंकि मैंने डिस्चार्जिंग टाइम क्वेश्चन बहुत हाई रखा हुआ है, तो मेरा डिस्चार्जिंग के टाइम पे कैपेसिटर एक तरह की वोल्टेज को होल्ड करके बैठा रहेगा। क्लियर है 8 पॉइंट? एनी डाउट फ्रॉम दिस प्लीज आस्क। चलो आगे। Yes, sir. ओके, अब आया था पीपीटी के ऊपर। अब देखते हैं यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। वी हैव गिवन एन इनपुट which is a scale type, plus V minus V, plus V minus V, right? And diode is taken as to be ideal diode. And here I am plotting the output. तो यहाँ पर क्या लिखो, स्टेप्स दे रखे हैं आपको कि आपने क्लैंपर के सर्किट को कभी भी एनालिसिस करनी तो क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है। फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई द हाफ साइकिल दैट मेक द डायोड फॉरवर्ड बायस। मींस आपने इसमें पहले वो देखना है कि कौन से हाफ में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। क्यों? क्योंकि जब मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तभी तो वो पाथ बनेगा चार्जिंग के लिए। तो आपने पहला काम क्या करना है, वो वाला हाफ ढूंढना है, पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ, दोनों में से एक हाफ होगा जिसमें डायोड फॉरवर्ड बायस होता होगा, है ना। जिस हाफ में फॉरवर्ड बायस हो रहा है उस हाफ से आपकी वेवफॉर्म स्टार्ट होगी बननी, क्योंकि पहले चार्ज करोगे तभी तो बताओ कितनी वोल्टेज क्वेश्चन के पास आ गई, है ना। सो वी हैव टू फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द हाफ साइकिल दैट मेक्स द डायोड फॉरवर्ड बायस्ड। Once the diode is forward biased, then you have to apply the KVL across the capacitor and the voltage. तो अब आपने जब कैपेसिटर जब आपका पॉजिटिव आपने देख ली कि ये वाला हाफ है, तो आपने KVL लूप लगाना है। फिर उसके बाद थर्ड थिंग, सिलेक्ट द रिमेनिंग हाफ साइकिल एंड फाइंड V नॉट। तो जिस हाफ में डायोड कनेक्ट नहीं कर रहा, अब उस हाफ पे आ जाओ, क्योंकि पहले हाफ में हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया बाय मेकिंग द डायोड फॉरवर्ड बायस, है ना। तो हमने पहले वो वाला साइकिल आइडेंटिफाई किया जिसमें हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा था। तो जब फॉरवर्ड बायस हुआ तो कैपेसिटर ने चार्ज हो गया, जब चार्ज हो गया तो अगला हाफ आया तो उसमें डायोड रिवर्स बायस होगा। तो इट मींस आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा बाय दिस रेजिस्टर आर, बट ये इसको होने नहीं देगा, ठीक है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज V नॉट फॉर दैट बाय अप्लाइंग द KVL, एंड देन यू हैव टू प्लॉट द आउटपुट वेवफॉर्म्स एज पर द these results 2 and 3. अब हम आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर, कैसे काम करेगा ये। नाउ फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, सिलेक्ट द हाफ साइकिल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाता हूँ, देखो पीछे वाले सर्किट में ये डायोड का P यहाँ पर है ना, ये N है, तो पॉजिटिव यहाँ पर दूंगा तो आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। इतनी बात तो क्लियर है ना। तो हमने पहले हाफ साइकिल, जो फर्स्ट स्टेप था कि आइडेंटिफाई द हाफ साइकिल, सो वी हैव आइडेंटिफाइड द पॉजिटिव हाफ साइकिल is the half cycle where my diode is going to be forward biased. So it means from 0 to T/2, when my input is plus V, my diode is going to be forward biased. So let's go there. So we have replaced the diode with a short circuit closed switch. So what will happen now? Same as clippers, जो हमने shunt clipper का पढ़ा था कि whenever my diode is short circuited, which is in the shunt arm, the entire amount of current will flow through that, है ना। कोई करंट फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो आपकी जो ये इनपुट प्लस V लगाई है आपने, इसकी वजह से जो भी करंट जनरेट हो रहा है वो सारा करंट कहाँ जाएगा, इसी लूप में जाएगा। यहाँ तो करंट जाएगा कुछ, देयर वोंट बी एनी करंट। क्यों? क्योंकि वहां पर डिस्टेंस 0 मिल रही है उसको, वहां पर तो R लगी हुई है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट वैल्यू बाय दिस कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड नाउ। If I am applying plus V, at what value my capacitor is going to charge? बताओ। इसको आप ऐसे लेके चलो, अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, ये बैटरी लगा रखी है मैंने 20 वोल्ट्स की, ये कैपेसिटर है ना, और ये शॉर्ट आ गए, तो इसको मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ दिखाने के लिए आपको कि जो इन दोनों पॉइंट से वोल्टेज है वही वोल्टेज कैपेसिटर के पास आ रही है। तो कैपेसिटर किस वोल्ट पे चार्ज होगा? V volts पे। V वोल्ट पे ना। जब मैं V वोल्ट जो दे रहा हूँ, 5 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी दे रहा हूँ, उसी वोल्ट पे चार्ज होगा, वैल्यू पे चार्ज होगा। एंड व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज? और यहाँ कुछ करंट नहीं जा रहा, 0. So it means for this particular case, when my input is positive half cycle, my capacitor is getting charged
to a value V volts and I am getting 0 volts output. इतनी बात क्लियर है सबको? इस फर्स्ट हाफ में किसको दिक्कत हो बताओ मुझे कि in this first half when I've taken the diode as a forward bias because I'm considering the positive half cycle, so if it is diode is ideal तो short circuit से replace कर दिया मैंने इसको, है ना? तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा आपका किस वैल्यू पे चार्ज होगा? That is equal to my input voltage V, and at that point of time my output is 0 volts, right? Now let's talk about the negative half cycle, क्योंकि पॉजिटिव देख लिया वो चार्ज हो गया हमारे पास, अब नेगेटिव हाफ पे आओ। अब जब नेगेटिव पे आएंगे तो हमने क्या देखा कि डायोड तो आपका क्या हो गया, ओपन हो गया, यहाँ पर रिवर्स होगा डायोड, है ना? अब हमने क्या बोला था कि द डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज केप्ट वेरी हाई, सो वी डोंट अलाउ द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज, सो इट मींस द कैपेसिटर विल नाउ होल्ड व्हिच वैल्यू, द प्रीवियस चार्ज वैल्यू। वो कितनी वैल्यू थी? V वोल्ट्स की। अब जब मैंने नेगेटिव V लगाया तो क्या होगा, देखो ध्यान से, नेगेटिव V मींस नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, ये डिस्चार्ज हो तो ये वैसे रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? और ये आपका, अब इस में लूप लगाओ, केवीएल लूप, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव के नेगेटिव माइनस V, पॉजिटिव नेगेटिव अगेन माइनस V, देन ये पॉजिटिव आउटपुट यहाँ नेगेटिव है मान लो, सो माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0, तो V नॉट कितना आ गया? -2। क्लियर है इतना पार्ट? Yes, sir. नाउ इफ आई ट्राई टू प्लॉट दिस, तो प्लॉट कैसा बनेगा? देखो आपके सामने बना हुआ है, फ्रॉम 0 to T/2 मींस फॉर द पॉजिटिव हाफ माय आउटपुट वाज व्हाट? 0, तो मैंने यहाँ पर देखो 0 बनाया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, जब T/2 से T तक गया, जब मेरी इनपुट नेगेटिव थी, -V थी, तो मेरी आउटपुट क्या है? -2V, तो फ्रॉम दिस पॉइंट आई जस्ट गो डाउन -2V and again I come back after complete of this half period. Now if you focus on this output voltage, what is the output voltage swing? नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज स्विंग कितना है? 2V. 2V मींस पॉजिटिव पीक 0 पे है, नेगेटिव पीक -2V पे है, तो कितना आ गया? 2V। और इनपुट का स्विंग कितना था? इफ यू रिमेंबर हियर, V माइनस ऑफ -V, 2V. तो वो जो हमने बात पहले बोली थी कि इन क्लैंपर्स my input voltage swing must matches with the output swing. अब बताओ किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। सिंपल है क्लैंपर्स, क्योंकि आपने क्लिपर्स पढ़ा हुआ तो आपके माइंड में क्लैरिटी है कि हाँ ठीक है, वो डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, अकॉर्डिंगली वो करंट फ्लो करेगा, उसके अंदर से आगे नहीं जाएगा करंट, तो आपकी आउटपुट 0 आएगी। अगर डायोड कनेक्ट नहीं कर रहा है तब आउटपुट आएगी, उस केस में आउटपुट क्या आएगी? की वैल्यू लगा दिया हमने उसके लिए, तो कैपेसिटर हमारे पास डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा, तो वो वैल्यू को होल्ड रखेगा, तो आउटपुट मेरी 2V है। इज दिस क्लियर? चलें आगे, बताओ। Yes, sir. इट्स क्वाइट सिंपल। अब चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको प्रैक्टिकल डायोड बना दिया। अभी तो हम आइडियल डायोड बना रहे थे, है ना? अब ये सर्किट जो सा है ये डिफरेंट है उससे, तो मैं आपको इसको ये ज्यादा दिखाऊंगा नहीं, ठीक है? और आपसे काम करवाऊंगा अभी ये। ओके, आपका सर्किट ऐसे है, ये रजिस्टर, ये डायोड, और यहाँ बैटरी लगा कितने हमने? वीके की। And we're feeding the square wave input. Plus VP minus VP. अच्छा, हमने एक चीज अभी डिस्कस नहीं करी, आपने भी पूछा नहीं, मैंने भी नहीं बताया कि ये जो आपके पास पीछे सर्किट था ये वाला, दिस वन, ये कौन सा क्लैंपर है? नेगेटिव
नेगेटिव। ठीक है, अब कोई पूछे आपसे जो ये नेगेटिव क्लैंप पर आपने आउटपुट जनरेट की है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग, मींस आपका जो डीसी लेवल है वो कितना शिफ्ट हुआ है, पहले कितना था, 0 पे था, है ना, ये रेफरेंस 0 का मतलब डीसी लेवल का मतलब क्या है कि जो रेफरेंस लेवल है उसके ऊपर भी उतना होगा, उसके नीचे भी उतना होगा, है ना, बीच में इसका इंटरवल है। तो यहाँ पर इनपुट का डीसी लेवल 0 था, आउटपुट डीसी लेवल कहाँ पहुंच गया, माइनस वी तो वी हो अमाउंट जाएगा। ऑफ क्लैंपिंग V volts। अब ये बिना वेवफॉर्म के आप बता सकते हो कैसे, फ्रॉम द सर्किट। अब जो कैपेसिटर है, हमने क्या बोला था, कैपेसिटर इज एक्टिंग एज अ क्लैंपिंग एलिमेंट। तो कैपेसिटर किस में चार्ज हो रहा है, टू वैल्यू V volts। तो जिस वैल्यू में भैया कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वही मेरी क्लैंपिंग वोल्टेज होगी। क्लियर पॉइंट। so, कभी भी कोई मान लो आपका ये एमसीक्यू में आ गया, तो आप अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग कैसे डिसाइड करोगे, इट इज डिसाइडेड बाय द कैपेसिटर वोल्टेज। तो जिस वोल्टेज पे कैपेसिटर चार्ज होगा, है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट वोल्टेज कितनी लगाई आपने। तो अकॉर्डिंगली आपका कैपेसिटर उस पे चार्ज हुआ एंड योर आउटपुट अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग डिपेंड्स अपॉन दैट वोल्टेज की किस वैल्यू पे कैपेसिटर चार्ज होगा। अभी आपको इस केस में हमने लेके चले, जब आपका ये डायोड क्या था, क्या था डायोड, ये हमारा आइडियल डायोड था। अब जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ये वाला, लेट मी ओपन इट, दिस वन, here I am considering the diode to be of silicon, and let's say to make it a number, let me write here 1 volt suppose, and let's give this also 5 volts, this is minus 5 volts suppose। ठीक है, अब मुझे देख के बताओ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। सोचो, अब इस केस में क्या है, डायोड उल्टा लगा हुआ है ना, और डायोड के नीचे एक बैटरी एक्स्ट्रा लगी हुई है, इसको क्या कर रही है, फॉरवर्ड कर रही है, रिवर्स कर रही है, रिवर्स। रिवर्स कर रही है। ऑल एग्री टू दिस, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, एक रिवर्स बोल रहा है, फॉरवर्ड बोल रहा है, मैं कहा जाऊं बताओ। अरे भाई ये डायोड के पी पे पॉजिटिव लगी है तो क्या करेगी इसको, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस ना, रिवर्स नहीं होगी। रिवर्स कब बोला है आपने, अगर यहाँ पर डायोड के ऐसा लगा होता डायोड और यहाँ में बैटरी ऐसी लगाया था, नेगेटिव ऊपर तो पॉजिटिव नीचे होता, तब ये रिवर्स होता। ये तो इसके लिए फॉरवर्ड बायस हो रहा है इसको। अच्छा, इस सर्किट में मैंने कुछ गलती नहीं करी, कैपेसिटर नहीं है सर। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं। अब ठीक है, यस सर। जो पहले सर्किट बनाया था वो कौन सा सर्किट था पता है, वो भी सर्किट ठीक था, लेकिन किस चीज का सर्किट था वो, जब मैंने कैपेसिटर की जगह रजिस्टर लगाया हुआ था, क्लिपर। क्लिपर। तो आपको पता लग गया कि अगर डायोड सॉरी कैपेसिटर नहीं है तो ये क्लैंपर नहीं बनेगा। अब कैपेसिटर लगाने के क्लैंपर बन गया। देखो अब देखो कि जब ये कोई इनपुट नहीं लगाई मैंने, विदाउट एनी इनपुट, लेट मी से V input is equal to 0 volts, what will be the output voltage, ये तो बता दूंगा आप। ये तो हमने कल ही किया, क्लैंपर क्लिपर वाला पार्ट, शंट क्लिपर। जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है विदाउट एनी इनपुट, अभी आपने बोला ना कि फॉरवर्ड बायस हो रहा है 1.7। 1.7, all agree to this, say yes or no। सर 0.3। 0.3, ओके, और कोई, So 0.3. 0.3, 0.3 is the correct answer। Why? Because if my diode is forward biased and it is a silicon diode, तो क्या होगा, हमने कहा था कि इसको रिप्लेस करेंगे विद द बैटरी 0.7 का, और ये हमारा 1 वोल्ट है यहाँ पर, तो ये +1 है, ये -0.7, तो कितना आ जाएगा, +0.3। so means with 0 input I am getting 0.3 volts output। अब इनपुट लगा दो, तो इनपुट में क्या आइडेंटिफाई करना है पहले हमने,
कि किस हाफ में मेरा डायोड फॉरवर्ड होगा, किस में रिवर्स होगा। पहले फॉरवर्ड वाला ढूंढना है हमने, कौन से में फॉरवर्ड होगा? फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले हाफ में। पॉजिटिव वाले हाफ में बोलो। नो सर, सेकंड। सेकंड वाले में। देखो सिंपल सा फंडा क्या है कि आपका ये डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के यहाँ पर 1 वोल्ट है, +1 है ना। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज चाहिए फॉरवर्ड बायस कराना है तो यहाँ पर 1 वोल्ट से कम होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पे तो +5 वोल्ट आ रही है, 5 वोल्ट अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर तो ये तो इसको रिवर्स बायस कर देगी। अगर मैं यहाँ पर -5 लगाता हूँ तब क्या होगा? ये इट मीन्स द सेकेंड हाफ साइकिल is to be identified as the cycle when my diode is going to be forward biased. इतना पार्ट क्लियर है सबको कि सेकंड हाफ में मेरा -5 लग रहा है, because of that my diode is forward biased. Okay, now if it is forward biased, can you tell me at what value the capacitor will charge? Apply the KVL loop. कैसे? -5 लगा रहे हो आप, है ना, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर नेगेटिव ऊपर होगा, पॉजिटिव नीचे होगा, ऐसे होगा। नेगेटिव दिस साइड, पॉजिटिव दिस साइड। और ये आपका सिलिकॉन डायोड है तो इसको रिप्लेस कर दो विद बैटरी 5.3। 5.3। ओके, ऑल एग्री विद दिस? ये कोई और आंसर है बताओ? सबका 5.3 है, ये सबको समझ नहीं आ रहा? बोलो यार, कितने बच्चे बैठे सर हो? कौन सी साइकिल में किया है? नेगेटिव हाफ में, नेगेटिव हाफ में बच्चे। ओके, कितना आएगा बोलो? 5.3। सर 4.7। 4.7। ओके, वेरी गुड। और हाँ सर, -4.7। -4.7। ओके, वेरी गुड। और कोई आंसर? बस? अच्छा, आपको मैं इससे पहले एक चीज दिखाता हूँ। सी दिस वे, क्या आपने ऐसे लगाया लूप कि -VP + VC + 0.7 -VK = 0? अब इस फिगर में क्या देखो जो हमने बनाया था, हियर इट इज 1 वोल्ट, सिलिकॉन सिलिकॉन ही है। यहाँ पर हमने VP कितना लिया था? 5 वोल्ट, -5। तो इसका मतलब क्या हुआ? -5 + VC + 0.7 -1 = 0। तो VC कितना आया बोलो? 5.3। तो किसने बोला था 5.3? मैंने बोला था सर। नाम बोलो अपना। स्तुति सेठ। सुधीर सेठ, वेरी गुड। बाकी जिन्होंने बोला 4.7 चेक करो क्या गलती करी है आपने। देखो ना, हमने आपको पहले क्या कहा था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस साइकिल में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो हमने देखा नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका कौन सा है, वो डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो अगर फॉरवर्ड बायस नेगेटिव हाफ में हो रहा है तो हमने क्या किया? हमने लूप लगाया। लूप देखो यहाँ लगाया रखा है कि नेगेटिव, ये नेगेटिव दिस साइड, पॉजिटिव दिस साइड, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो लूप लगाया हमने, तो इट गिव्स मी व्हाट? -VP, वो पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा तो -VP आ गया। नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस आ जाता है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव फिर प्लस आ गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव आ गया। So this gives me a generalized result कि V0 is equal to VK minus, sorry, VC जो है, VC is equal to what? VP minus 0.7 plus VK। इतना क्लियर है
कि आपका फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल माय कैपेसिटर इज गोइंग टू चार्ज टू अ वैल्यू ऑफ 5.3 वोल्ट्स। इसमें किसी को डाउट तो प्लीज पूछो मेरे से। क्लियर है? तो अब आपकी जो ये कैपेसिटर है इसके क्रॉस वोल्टेज इकट्ठी होगी कितनी? 5.3 वोल्ट्स विद नेगेटिव दिस साइड पॉजिटिव दिस साइड फॉर द केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, है ना। अब दूसरी हाफ साइकिल लगाओ। दूसरी कौन सी है? पॉजिटिव वाली, है ना। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाया हमने तो यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव दिस साइड नेगेटिव दिस साइड, लेट्स से 5 वोल्ट है ना, तो पहले लेके चले थे। अब ये क्या हो जाएगा? डायोड ओपन, यस और नो? Yes, sir. तो ये इस यहाँ तो करंट आएगा ही नहीं, तो इट मीन्स आपका लूप ऐसे लगेगा। वो देखो यहाँ लगा रखा है इस बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव। तो इट मीन्स जो आपका 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट नेगेटिव से पॉजिटिव तो +5 आएगा, है ना। देन नेगेटिव से पॉजिटिव अगेन प्लस क्या? कैपेसिटर वोल्टेज 5.3, देन पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो V0 कितना आ जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और शुड आई अगेन एक्सप्लेन? बोलो शाबाश। फिर हो गया। हो गया। तो अब मेरी आउटपुट कैसी आएगी वो देखने वाली बात है ना। तो वो यही मैं आया था आपको के लिए। हमने बोला जब हमारी इनपुट नेगेटिव, जब इससे पहले हमने एक चीज डिस्कस करी थी, जब हमारी इनपुट है ही नहीं तो हमने क्या बोला था? आउटपुट क्या आएगी? 0.3 बोला था ना। ये देखो यहाँ पर निकाला था दिस वन, वेयर V इनपुट वाज 0, तो हमने निकाला था ये कि ये 0.7 है कि ये 1 वोल्ट, तो ये हमारा 0.3 वोल्ट आ रहा था, है ना। तो जब मेरी कोई इनपुट है ही नहीं तो उस टाइम में 0.3 में बैठा हूं मैं, तो लेट मी गो देयर एंड ड्रॉ हियर। तो लेट्स से 0.3 आपका यहाँ पर है कहीं। लेट्स से दिस इज 0.3। तो आपकी जो आउटपुट है ये तो बात पक्की है 0.3 से स्टार्ट होगा। अब जब आपकी नेगेटिव हाफ है तब आउटपुट कितनी आ रही थी? 5.3. 5.3। ये आउटपुट थी। नो, VC था। हम आउटपुट तो तो आउटपुट 0. प्लॉट कर रहे हैं। आउटपुट तो 0 हो जाएगा उसके। 0। आउटपुट 0 रहेगा। हाँ। और आउटपुट हम कह रहे हैं कि जब इनपुट 0 है तो आपकी आउटपुट 0.3 है, तो हाउ कैन आई हैव अ 0? चक्कर खा गया ना देखो इसमें। जब आपके पास ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो कितनी वोल्टेज इन दोनों की पॉइंट्स के बीच में जा रही है? ये जो हमारा जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया तो हमने क्या कहा कि इससे रिप्लेस किया हमने, तो कितनी वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? 0.3। 0.3. बोल रहे हो आप लोग? जब मेरा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगी ना 1 वोल्ट की एक्स्ट्रा, तो अगर मैं सिलिकॉन ड्रॉप माइनस भी करें तो 0.3 तो हमेशा रहेगा, 0 कभी आएगा ही नहीं मेरे इस केस में आउटपुट में। यस और नो? I will always be getting 0.3 whenever my diode is forward biased across these 2 points. So what it means? My waveform will start from minus 0.3 for the negative half. ठीक है, नेगेटिव हाफ में अगर मैं नेगेटिव हाफ ये हम बनाऊं तो नेगेटिव हाफ में आपकी 0.3 रहेगी, और पॉजिटिव हाफ में कितना रहेगा वो मैंने निकाला है 10.3, है ना। तो इट मींस फॉर द पॉजिटिव हाफ आई कैन ड्रॉ हियर as 10.3 again
So what is happening here? That is, my output is switching from 0.3 to 10.3 peak to peak. So what is the output voltage swing? 10.3 minus 0.3 कितना आ गया? 10. And what is input voltage swing? 5 minus or minus 5, 10 volts. So my input voltage swing, output voltage swing matches. ये क्लियर हुआ को नहीं हुआ? कोई डाउट तो प्लीज पूछो. तो मैं आपको बेसिक माइंड बताता हूँ कि हमारा क्लैंपर में हमने करना क्या है. फर्स्ट चीज आइडेंटिफाई करनी है कि किस हाफ साइकिल में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है. क्योंकि जब मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है तभी मेरा वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है. तो पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज करना है. देन वी विल go into the other half where my diode is not conducting. At that time, my capacitor will act as a battery because it is not discharging. So that voltage, capacitor voltage, is acting as a clamping voltage at which my diode will clamp. So here it is coming out to 5.3. So you can see that the reference voltage here is somewhere here, which is I can write here 5.3 volts. So 5.3 volt is the clamping voltage. तो अब इसमें मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लैंपिंग? सर 5.3. 5.3. अगर ये बैटरी ना लगी होती 1 वोल्ट की तो क्या फर्क होता? जो मैंने पहले किया था ऑलरेडी कि इंस्टेड ऑफ 0.3 आपका ये 0 पे टच करता और यहाँ पर 5.3 की जगह क्या होता? 5 होता और ऊपर 10 तक आता. क्लियर है कंसेप्ट? यस सर. अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन क्या है ये आपके सामने. ये हमने एक डायोड लिया और ये बैटरी लगाई है 5 वोल्ट्स की. अब जो मेरी इनपुट है ना वो देखो डिफरेंट है कि पॉजिटिव में +10 है, नेगेटिव में -20 है. अब आपको बोला कि डिटरमिन द V0 फॉर द नेटवर्क एंड प्लॉट द आउटपुट. तो अब आप इसकी V0 आइडेंटिफाई करो. तो पहला काम क्या करोगे कि किस हाफ में मेरा डायोड फॉरवर्ड हो रहा है पहले ये निकालो. देखो किसमें, देख डायोड की डायरेक्शन से पता लग जाएगा आपको. बताओ किस हाफ में कनेक्ट करेगा ये? फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ में. ऑल एग्री टू दिस? अभी भी क्लियर नहीं हुआ. देखो बच्चे ये डायोड के नेगेटिव में देखो ना, डायोड के पी पे क्या लगा है देखा करो ध्यान से. पी पे बैटरी का पॉजिटिव लगा है. कितनी वोल्ट है? 5. तो यहाँ पर +5 लगा हुआ है. तो अगर मुझे इसको फॉरवर्ड कराना है तो यहाँ पर वोल्टेज क्या चाहिए मुझे? लेस देन 5. लेस देन 5 वोल्ट्स. तो अगर फर्स्ट 10 वोल्ट होगी तो कहाँ से लेस होगा? वो तो रिवर्स हो जाएगा ना. तो यहाँ पर -20 आएगी क्योंकि आपके दो इनपुट लेवल से +20 या +10 या -20 है ना. तो इट मींस फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल माय डायोड इज गोइंग टू बी forward biased. Now if it is going to be forward bias, can you give me the voltage at which the capacitor is going to charge? If it is ideal, diode is ideal, suppose. जब आपने नेगेटिव हाफ लगाया तो यहाँ नेगेटिव लगाया, यहाँ पॉजिटिव लगाया है ना. 20 लूप लगा दो, प्लस से माइनस गए -20. Yes, it is coming out to 25 volts. कैसे? ये -20 किया, देन नेगेटिव से प्लस क्या होता है? +VC. देन डायोड आइडियल है, शॉर्ट कर दिया. देन प्लस से माइनस, -5 इज इक्वल टू 0. तो VC कितना आ गया? 25. It means for the negative half cycle, my capacitor is going to be charged at the level of 25 volts. Now, when I give the other half, means the positive half, तो अब क्या होगा? जब मैं यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव दूंगा, यहाँ पर नेगेटिव दूंगा, तो अब लूप लगाओ. अभी डायोड तो रिवर्स हो गया, तो डायोड तो हमारे यहाँ से ओपन हो गया है ना. तो यहाँ पर मैं आपके बना दूं सर्किट. इट विल लुक लाइक दिस. तो अब करंट कहां से जाएगा? इस लूप में.
है ना, इसमें तो आएगा ही नहीं कुछ क्योंकि ओपन हो गया ये तो। अब यहाँ कैपेसिटर कितनी वैल्यू चार्ज है 25 वोल्ट्स पे, इनपुट कितनी लगा रहे हो आप 10 वोल्ट्स की, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर, और ये आपकी पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर V0। लूप लगाओ क्या बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव गया +10, नेगेटिव से पॉजिटिव गया +25, पॉजिटिव से नेगेटिव गया -V0 = 0। तो V0 क्या आ गया 35। तो अगर मैं इसकी आउटपुट प्लॉट करूं कैसे बनेगी आउटपुट, लेट मी प्लॉट इट हियर। फॉर इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल व्हाट इज द आउटपुट, वो नहीं निकाली अभी हमने। जब डैश आपका ये शॉर्ट हो गया है ना नेगेटिव हाफ में, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 35। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मेरा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था नेगेटिव हाफ साइकिल में, है ना, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज, हमने तो कैपेसिटर वोल्टेज निकाली 25 वोल्ट्स आ गई मेरे और पास -15। -15 और एग्री टू दिस, बोलो -15 इज रॉन्ग बच्चे, व्हाई इट इज रॉन्ग, 5 वोल्ट ही तो होगा। 5 वोल्ट्स होगा क्योंकि ये देखो जब डायोड आपका शॉर्ट हो गया ना बच्चे, तो इन दोनों पॉइंट्स पे 5 वोल्ट की बैटरी तो लगी है और तो कुछ है ही नहीं, तो इट मींस whenever my diode is forward bias I am getting 5 volts, and when my diode is forward bias for the negative half, so let me draw here, let's say this is 5 volts, तो नेगेटिव हाफ में मेरे पास 5 वोल्ट रह रहा है, और पॉजिटिव हाफ में कितनी आउटपुट आ रही है मेरे पास, अभी निकाली थी हमने 35। 35, 35। ठीक है, तो इट मींस वी विल गो to 35 from 5 to 30, it means जो मेरी इनपुट थी